Good evening, everyone, to all the Yes, guests. good evening. Good evening, sir. And I would like to take a brief moment to introduce our organization. Saints Welfare Foundation is a non-profit organization, and it is dedicated to making a positive impact in various sectors such as education, social welfare, women empowerment, skill development and entrepreneurship, health, research, cultural, international cooperation, and other fields. Our mission is to foster healthy lifestyles, thriving communities, and robust business by freeing our volunteer members from the burden of day by day details. We enable them to focus their energy and efforts on achieving long term goals. So, now I would like to welcome Sir Sandeep Kumar, the speaker for the today's international webinar. I would like to say the few lines about the speaker. So, he is working in a customized software development and a cloud infrastructure building, and his main aim for founding this startup is to create employment and give opportunities to students to make up their careers, and also want to give the efforts to improve UP economy. So, Sir Sandeep Kumar is here today to help us build this event. And with this note, I, Nandini, on behalf of the Saints Welfare Foundation, would like to give my heartiest welcome to Sir Sandeep Kumar. Good evening, guests and the foundation. And thanks a lot. And I'm really sorry to late the join. There is the network issue. So now we will start about the digital marketing. What is digital marketing? And what's the role of digital marketing in 21st century? And the marketing, how to change the last 1920s era and now to 21. So there are the many changes in the marketing, and I will tell you about the digital marketing. So first, what is digital marketing? Digital marketing is a way to promote brands and products online and through other digital channels. other digital marketing क्या है? डिजिटल मार्केटिंग अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को हमें ऑनलाइन प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, डिजिटल मार्केटिंग हम उसको बोलते हैं. लाइक दैट द प्रीवियस हम 19 या 20 की बात करते हैं, तो उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग का इतना बड़ा रोल नहीं था. उस टाइम ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे आप देखा होगा कि बैनर है, होर्डिंग है या पेपर, तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग, मतलब उसको हम जगह जगह बोर्ड लगा के, बैनर लगा के अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पहुंचे. एडवर्टाइजमेंट करते थे टीवी और अदर ऑडियो चैनल्स आल्सो. तो नाउ द टेक्नोलॉजी हैज कम and there is the prospective change of the marketing, and now we move into the digital sector, and the new comes that the digital marketing. It means that we can promote our product, our brand to more people in minimum time. Means हमने कोई एक अपना प्रोडक्ट का प्रमोट करना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में एक इमेज लिया, उसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा और हमने सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश किया, तो वो सिंपल एक इमेज ग्लोबली हमारा रीच होता है. मीन्स दैट वो इंडिया में है, आउट ऑफ कंट्री, ग्लोबली वो हमारा लोगों तक पहुंच जाता है. तो there is the change in the marketing that offline to online. इसके advantage, what is the advantage, and I will discuss the next step also, the all things about the how we will do the. ये एक इंट्रोडक्शन था, उसके आगे हम बात करेंगे कि कैसे अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, इसको करियर कैसे बनाना है और इसके एडवांटेज क्या हैं. तो वो सारी चीजें हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे. देयर इज द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट द मार्केटिंग. तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि हम मार्केटिंग करते क्यों हैं? बाय वी डू मार्केटिंग, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, तो बाय वी डू द मार्केटिंग. तो सिंपल सा इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं. आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, एनी प्रोडक्ट, चाहे वो आपके मोबाइल हो, पेन हो, एनीथिंग एल्स, जब तक वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट है, चाहे वो कार हो, एनीथिंग एल्स, चाहे वो घर भी हो सकता है, तो अगर वो आपको तब पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको परचेज नहीं करते हैं. तो इसलिए क्या, हमें फोन लॉन्च हुआ, मार्केट में कोई नया फोन आया, तो वो हमें मार्केटिंग हम उसकी करते हैं. मीन्स हम उसको बताएंगे कि ये नया फोन आया है, तो तब उससे कस्टमर एक अप्रोच आता है कि अब इसको हमें परचेज करना है कि नहीं करना है. तो सिंपल मार्केटिंग इज दैट टू रीच द ब्रांड और प्रोडक्ट to more people. So there are different channels. वो अलग अलग चैनल्स हैं. उसमें हो सकता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आप टीवी, ऑफलाइन कॉलिंग और गूगल चैनल्स, ये डिफरेंट थिंग्स हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग इज एनी
फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। अब हमारा आता है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? तो जैसे मैं अभी ऑलरेडी आपको बता रहा था, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद योर प्रोस्पेक्ट एंड लर्न एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोस्पेक्ट को इंटरेक्ट करना और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो पहचाने उस प्रोडक्ट के बारे में, वो हम इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का करते हैं। सेकेंड, द एबिलिटी टू रीच ग्लोबल मार्केट प्लेस। ऑफलाइन हम मार्केटिंग करते हैं तो पर्टिकुलर एक रीजन में होता है। अगर आपने कहीं पे होर्डिंग लगाया तो वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे लगाया, तो उसी दायरे के लोग जहां से निकल रहे होंगे वहीं से वो उसकी रीच रहती है। बट इफ यू आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग, इट मीन्स दैट वो आपके अगर ग्लोबली लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, तो वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आपकी ग्लोबली होती है। तो चाहे वो आप किसी भी अपना प्रोडक्ट बेस्ड हैं या सर्विस बेस्ड हैं, या आपकी सर्विस ग्लोबली मीन्स दैट आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो भी आपके रीच यहीं से वन डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से लोगों तक रीच हो जाती है। थर्ड आता है यू कैन सेव मनी एंड रीच मोर कस्टमर फॉर लेस मनी देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। मीन्स जैसे अभी हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, उसमें क्या है कि उसमें रीच कम है, और दूसरा पोस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, एक सिंपल सा पोस्ट लिखा, वीडियो बनाया, पब्लिश किया, तो उसमें अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसका पेड अगर है आपका तो उसमें पोस्ट है, अगर आप अनपेड हैं तो आप उसको पब्लिश करके फिर भी आपका वो लोगों तक रीच हो रहा है, मीन्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी है डिजिटल मार्केटिंग। और अगर आप एडवर्ट चैनल यूज करते हैं, जैसे फेसबुक का एडवर्ट चैनल है या गूगल का एडवर्ट चैनल है, तो वो पेड है। तो इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज आल्सो दैट द यूजेस द डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन ट्रैक रेस्पॉन्सेज टू योर मार्केटिंग एफर्ट्स इमीडिएटली। मीन्स अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे या किसी अदर चैनल पे, यूट्यूब पे, अगर आपने कोई भी पब्लिश अपना आर्टिकल पब्लिश किया है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स आपके पास एनालिटिक्स की पूरी रिपोर्ट आएगी कि आपका जो कंटेंट है जो आपने पब्लिश किया है वो हमारा कहाँ तक, कितने लोगों तक रीच हुआ, किस कंट्री में हुआ। और आप उसमें एज, यू कैन आल्सो सेट द एज, द ग्रुप, एज ग्रुप लाइक दैट 30 to 40, 40 to 50. So they can modify the way of the different age group and the city, country for the promotion of your product. जैसा आपका प्रोडक्ट है कि आपके इतने से इतने दायरे के लोग हैं या इतने से इतने दायरे एज के बंद, तो उस तरीके से आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो दिस इज द व्हाई वी यूज द डिजिटल मार्केटिंग। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, राइट ए ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स दैट you have a channel, yeah, you have also a domain, then you can write the articles and publish on the social media like that, LinkedIn, or yeah, you also publish on the same Facebook. You can mention the URL of the blog, and also that you can publish on the channel, different social media channels. Second, the content marketing also. The content marketing, you write a content, 100 words content, 200 word content, and also publish on the LinkedIn, and you also publish on the Facebook, Twitter. So this is also the channel that you can use in digital marketing. Next is email marketing. So we can share the same mail the different users या person for your, you can also mention your product, and you can also what's your service offer in the mail, and you can also share the attachment. So this is the also the part of the digital marketing. This is the best way to promote our product and to reach more, engage the more prospective in the less time. Now is Facebook. Facebook also is the part of digital marketing. This is the social media platform. इसमें भी हम अपना digital marketing is different tools also in the Facebook that we can use the free of cost and also the paid. Means that we can create a paid account, Facebook ad, and we can also set the fixed limit, the how much we pay for the daily basis, that the 100, 500.
मीन्स दैट हमने फेसबुक में अपना अकाउंट बनाया, उसमें फिर हम दो तरीके से उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। टू टाइप, मीन्स फ्री मीन्स आपने जो आपके कनेक्शन है या आपने मान लीजिए कोई पेज बनाया, यू हैव क्रिएटेड ए पेज एंड देन यू पब्लिश योर आर्टिकल्स या इमेजेस या also the video and you publish on the same page or in your friend in your Facebook home post, which is the post. तो दिस इज द फ्री ऑफ पोस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपना आर्टिकल बनाया और पब्लिश किया। इसमें ही सेकंड होता है फेसबुक एडवर्ड एड, उसमें आपने अपना पेड अकाउंट बनाया, साइन अप बनने के बाद में उसमें फिर आप क्या आर्टिकल लिखेंगे, क्या टेक्स्ट रहेगा, क्या इमेज रहेगा, उसको क्या उसमें आप अपने अकॉर्डिंग बजट सेट कर लेते हैं। अगर आपका कितना बजट है 200 500, तो एज पर डिपेंड ऑन यू कैन सेट योर बजट, योर जोग्राफिकल एरिया कि आपको कहाँ कहाँ अपना एड दिखाना है और किस एज ग्रुप, व्हाट्स द एज ग्रुप फॉर द सेम और विच द पर्सन या एंगेज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो आपके वो उस एड को देख। दिस इज द फेसबुक एंड द नेक्स्ट इज गूगल आल्सो, गूगल एडवर्ड। गूगल पे भी हम अपना डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प द पार्ट ऑफ द digital marketing. Google also the paid, like that you type or something that you are looking for phone, then you can type on the mobile या phone on the Google search. Then the two things comes. That first is the you have also listened about the SEO, search engine optimization, or SEM, search engine. SEO, search engine optimization means आपने suppose that write down on the Google that need a phone या something, तो आपका the website comes on the top, then you see this is the SEO means that the ranking of the website and it shows on the first, like that the library means that आपकी बुक्स है, वो जो आपकी पहले बुक्स उठी, पहली बुक आई, तो मीन्स उसने अपना रैंकिंग, अपना एसईओ वेबसाइट का, उसके लिंकिंग, एसईओ को करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं, चैनल्स हैं, तो उससे वो अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करके कीवर्ड्स हैं उसमें कि कैसे कीवर्ड्स क्या लिखने हैं कि जिससे जो हम उस पर टाइप करते हैं गूगल पे, तो हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग फिर वो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, तो उसको बोलते हैं एसईओ। उसके थ्रू गूगल पे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस की सेल करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। सेम उसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए किसी का एसईओ अच्छा नहीं है और वो भी अपने आप को ब्रांड करना चाह रहा है, तो उसमें क्या होता है एसईएम, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्ड, उसको एडवर्ड बोलते हैं, तो उसमें वो अपना अकाउंट बनाएंगे गूगल में, और गूगल में एडवर्ड बनाने के बाद में सेम चीज है, वो जो आप सर्च करते हैं तो ऊपर आपने देखा होगा इसमें कुछ एडी एडवर्ड ऐसे कुछ करके लिखा होता है, तो वो पेड होते हैं। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो पे पर क्लिक, पे पर कॉस्ट, उस तरीके से उसके चार्जेस उसके डिडक्ट होते हैं। मीन्स अगर आपने कोई एड वर्ड यूज किया हुआ है अपने प्रोडक्ट के लिए गूगल पे, तो उसका आपका पे पर क्लिक जो विजिट गूगल पे करते हैं और उस प्रोडक्ट पे अगर वो उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तब वो आपका बैलेंस डिडक्ट होता है। अगर इफ दे कैन नॉट क्लिक देन योर मनी विल नॉट डिडक्ट। मीन्स आपने जो एडवर्ड पे जो कॉस्ट लगाई हुई थी वो आपकी कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगी अगर उस पे कोई लिंक पे आके क्लिक नहीं करता है। तो दिस इज द आल्सो द वे that you are using for the your marketing and branding, that the SEO and SEM also. Next is the YouTube also the part of digital marketing, and at that time the YouTube is the most important and the main platform for digital marketing. That means that we can create या we create small videos and उसमें आपके लाइक सब्सक्राइब, हमने अपने प्रोडक्ट के वीडियो हों या आपके अपने मीन्स दैट आपको कोई लेक्चर करना है या आपको अपना कोई थॉट शेयर करना है, तो दिस इज आल्सो द गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना खुद से, हमें फ्रीडम है कि हम खुद से वीडियो पब्लिश करते हैं, खुद से हमने वीडियो क्रिएट की, उसमें कंटेंट चेंज करना, कंटेंट चेंज किया, इमेज वीडियो चेंज करना है, उसमें वीडियो में एडिट किया, उसके बाद में हम उसको पब्लिश किया, तो उसमें भी हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच, कि हम ग्लोबली अपने थॉट्स, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करते हैं, तो उससे भी हमारा ज्यादा लोगों तक एंगेज होता है। और हमने मीन्स दैट आपने कोई प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं, तो उसमें क्या है कि आपने यूट्यूब ओपन किया, सर्च किया, तो उससे रिलेटेड आपको उसके आंसर मिल जाते हैं कि आपने जैसे किसी का सिलेबस हो सकता है, किसी को प्रोडक्ट का हो सकता है सर्च करना है, किसी को हो सकता है कोई फोन के बारे में रिव्यू देखना है, किसी को हो सकता है कि कार के बारे में देखना है या
अदर डिफरेंट थिंग्स हैं। तो जिसकी जो रिलेटेड क्वेरीज हैं वो अपना यूट्यूब पे टाइप करते हैं और उसी से रिलेटेड मैनी लॉट ऑफ वीडियोस कम्स आउट। तो उसमें फिर आपको अपना यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, तो उस पे आपने चैनल्स बनाए हुए हैं, तो उस पे आपकी वीडियो लोग देखते हैं, तो उसमें भी आपका एक अच्छा इनकम। दिस इज द गुड थिंग दैट द रीच more people and you can create your channels on the YouTube and publish on the social, also the channel links also on the your platform, the LinkedIn also, the Twitter, and also and your friend circle. This is the part also of the digital marketing. And now we discuss that कि ये सारे हमने चैनल डिस्कस किए कि हम इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अपना के डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी सारे प्लेटफॉर्म या चैनल्स आपको बताए कि उसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। दीज आर द डिफरेंट चैनल्स फॉर यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें हम बात करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, करते क्यों हैं, टूल्स क्या क्या हैं, और अब हम इसको अगर एज ए करियर, एज ए इनकम सोर्स, तो उसमें हम अपना फ्यूचर अगर एज ए देखते तो उसमें हम कैसे अपने आगे मतलब इसको अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो उसके लिए है, अब जैसे अगर एज ए कंपनी हम लोग बात करते हैं तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं, कोई भी एबीसीडी आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, एनीथिंग एल्स, चाहे वो हो सकती हैं कार मैन्युफैक्चरिंग हो सकती हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो सकते हैं, चाहे वो फूड ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स, सबका मेन पर्पज है अपना प्रोडक्ट बनाना और लोगों तक पहुंचाना। तो हम एज ए इसमें फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं या हम इसमें किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करके एज ए ज्वाइन भी कर सकते हैं कि हम उनको ये जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं उनको यूज करके उनके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एंगेज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन कनेक्ट द कंपनीज आल्सो, उसमें करते हैं। या हम एक पर्टिकुलर फ्रीलांसर, हमने लोगों से बात की, उनका प्रोजेक्ट लिया और उस पर फिर हमने उनका प्रमोशन किया। उसके बाद में आपने एनालिटिक्स, हर प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स टूल्स हैं, उस पे आपने उन प्लेटफॉर्म टूल्स के थ्रू उन लोगों को अपना रिजल्ट आउटपुट है वो भी आपने उनको एनालाइज किया, कि उनको वो सारी चीज़ें दिखाई कि हमने आज ये प्लान किया, ये स्ट्रैटेजी थी। उसके अलावा फिर आपने उनको, यू हैव शेयर द डिटेल्स दैट हाउ मेनी विजिट्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑन द वेबसाइट आल्सो, या यू हैव शेयर द मेल कंटेंट ब्लॉग। So you can also analyze your target audience also and you can share the report with your client. And इसके अलावा एज ए फ्रीलांसर आप अपना, जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था कि फ्रीलांसर में आपने छोटे छोटे लोग या तरीके से आपने प्रोजेक्ट लिए, उनसे बात की तो उनकी ब्रांडिंग की, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन आल्सो ज्वाइन एज ए टीम मेंबर in the big organization. They are also promoting or branding their product on the digital platform. So they have the team, different roles for the, one is sending the mail, one is sending on the social media platform, one is the handling on the AdWord, one is the handling on AdSense and the social media, YouTube. So they are the different channels. So you have also the join the team and help to grow your organization or to reach your product the more customer, prospective customer also. So these are also the things. And now we discuss the tool. We have done the all activity, means that discuss Facebook, YouTube, and the AdSense. The main tool is the Google Analytics tools. This is used to analyze your daily work और डेली एंगेज द कस्टमर्स। मीन्स ये टूल्स आपके एनालिटिक्स के लिए यूज है। टूल्स आपका यूज होता है आपके डेली एनालाइज एज ए रिपोर्ट। मीन्स आपके कितने लोगों तक आपने अपने जो पोस्ट पब्लिश किया वो कितना लोगों तक, ऑडियंस तक आपका वो रीच हुआ, किस जोग्राफिकल एरिया में था, क्या एज ग्रुप था, तो वो फुल्ली एक रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ आप उससे डेली बेसिस से देख लेते हैं कि मैं किस वे में, किस प्लेटफॉर्म पे कितना मेरा एफर्ट कर रहा हूँ और उसका मेरा क्या आउटपुट है, व्हाट इज माय आउटपुट व्हेनेवर आई एम गिविंग माय एफर्ट टू कंटिन्यू द डिजिटल मार्केटिंग ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। So then I use my individual level that how I am doing and how I need to change my strategy, my planning. Means अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो well and good, and if that the report I will check that there is need to some changes,
then you can make and change your strategy. आप अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं एज पर द एनालिसिस द हेल्प ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें एनालाइज हो जाती हैं, उसका भी द गुड थिंग दैट यूज द डिजिटल मार्केटिंग आल्सो। Once again, thank you, sir, for presenting this. And he has skillfully imparted his session, leaving us with the insightful conclusion. And his interesting session has captured our attention.